اور میری آج کی مجلس میں حمد خدا کے لیے اس سے بڑا جملہ تو نہیں ہے کہ فاطمہ جس کو سجدہ کرے اسے خدا کہتے ہیں. سیدہ سلام اللہ علیہا جس ذات کو سجدہ کرے اسے ذات پروردگار کہتے ہیں. میں اپنی بات کو آگے بڑھوں بلا کسی تمہید کے. اس بیوی کے فضائل کے دو جملے پڑھنے ہیں. وہ سیدہ کہ جس کی معرفت کے آسمان کو پہچاننے کے لیے انسانی ادراک ناکافی ہے، بلکہ اس طرح کہوں جہاں انسانی ادراک کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے معرفت سیدہ سلام اللہ علیہا کے آسمان کی ابتدا ہوتی ہے. کون ہے فاطمہ زہرا جس کا بڑا بیٹا حسن ہو، جس کا چھوٹا بیٹا حسین ہو، جس کے گھر کی شجاعت دیکھنی ہو تو بدر کو دیکھو، جس کی قیمت و قدر دیکھنی ہو تو صورت قادر کو دیکھو. سارے کا سارا جہاں جس کی عزت و توقیر ہو، جس کی شان میں نازل آیت تطہیر ہو، ساتھ ساتھ بولتے رہنا، جس کی شان میں نازل آیت تطہیر ہو، جس کی سخاوت کا سورہ ہر چرچا کرے، جس کی مادر اسلام پہ اپنا خرچہ کرے. کون فاطمہ زہرا جو عصمت کے، کون فاطمہ زہرا عفت کا حجاب فاطمہ ہے، عصمت کا حصار فاطمہ ہے، آیت تطہیر کی ملکہ فاطمہ ہے. تو وہ بھی بہن ساتھ ساتھ بولتے رہنا، آیت تطہیر کی ملکہ فاطمہ ہے، خدا کا خاص کردہ فاطمہ ہے. ملائکہ جس کے در کی نوکری کر کے عرش پر جا کر قبر کرے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. کون فاطمہ زہرا؟ طہا کے گھر کی زینت فاطمہ ہے، سورہ کوثر کی تفسیر فاطمہ ہے، ہم گفتار نبی فاطمہ ہے، ہم کردار نبی فاطمہ ہے. کون فاطمہ زہرا؟ اتنی عظمت کا مالک نبی جس کی کون نبی جس کو قرآن اپنی زبان میں کبھی طہا کہتا ہے، کہیں یاسین کہتا ہے، کہیں مدثر کہتا ہوا نظر آتا ہے، کہیں مزمل کہتا ہے، کہیں سراج منیر کہتا ہے، کہیں بشیر کہتا ہے، کہیں نذیر کہتا ہے. اتنی بڑی عظمت کا مالک نبی جس بیوی کی آمد پر اپنی مسند چھوڑ کے کھڑا ہو جائے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. کتنا بڑا مقام ہے بیوی کا. اہل سنت اور اہل تشریح کا مجمع تشریف فرما ہے. میرا آپ سب سے سوال ہے کہ سنت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت کی تعریف کیا ہے؟ میں بیان کرتا ہوں، اگر کہیں غلطی ہو تو آپ تصحیح فرما سکتے ہیں. اہل سنت کے یہاں جو سنت کی تعریف ہے ان کی نزدیک یہ ہے کہ جو رسول اللہ انجام دے وہ ان کے نزدیک سنت ہے. لیکن ہم شیعوں کے یہاں سنت کی تعریف میں عمومیت نہیں جاتی ہے. وہ کس طرح کہ قول مسنون، فعل مسنون اور تقریر مسنون، وہ کام جو مسنون کہے، وہ کام جو مسنون انجام دے اور وہ کام جو معصوم کے سامنے کیا گیا ہو اور مسنون نے دیکھ کر منع نہ کیا ہو وہ سنت ہے. لیکن ایک چیز پر اہل سنت کا بھی اور شیعوں کا بھی اتفاق ہے، وہ کیا کہ جو رسول خدا کرے وہ سنت ہے. اس پر شیعہ بھی متفق ہے، اس پر سنی بھی متفق ہے کہ جو کام رسول خدا انجام دے وہ سنت ہے. تو میں کہتا ہوں کسی مفتی صاحب سے جا کر پوچھے
चाहे करम कर दे। सबका बड़ा करम उस पर, उसने हम पर ये किया कि हमें अदब से वजूद अता किया। अगर खुदा हमें वजूद अता ना करता तो क्या करते, लड़ पड़ते। जब होते ही ना तो लड़ते कैसे। सबसे पहला करम उसने हम पे ये किया कि उसने हमें वजूद अता किया। उसके बाद उसने सोचा और करम करो, फिर उसके करम उसने करम किया कि हमारे सर पे तमगाए शराफत सजा के हमें अशरफुल मखलूकात बना दिया। फिर उस बेदिल के दिल में और ख्याल आया कि मैं कुछ और करम कर दूं। स्पीकर की तरफ नहीं देखना, मेरे तरफ मुतवज्जो होना। फिर उस बेदिल के ख्याल में ख्याल आया कि इन पे और करम कर दूं। उसने हमें फिर मंजिल तस्लीम पे फैज करके मुसलमान बना दिया। पहले वजूद अता किया, फिर इंसान बनाया, फिर मुसलमान बना दिया। फिर उसने सोचा कुछ और इनको अता करूं, फिर उसने मंजिल तस्लीम से मंजिल ईमान पर फैज करके हमें मोमिन बना दिया। फिर उसने सोचा कुछ और करम कर दूं, फिर उसने मंजिल ईमान से मंजिल ईकान पर फैज करके हमें यकीन जैसी नेमत अता कर दी। परेशान नहीं होना, हमें यकीन जैसी, साथ साथ रहिएगा, आखिर में लौट पाएगा। फिर उसने हमें यकीन जैसी नेमत अता कर दी। फिर उसने सोचा इन्हें कुछ और अता करूं, फिर उसने यकीन जैसे पहले कायनात अता की, कायनात वजूद बनाया, फिर इंसान बनाया, फिर इंसानों में से कुछ मुसलमान बनाए, फिर कुछ मुसलमानों में से कुछ मोमिन बनाए, कुछ मोमिनों को यकीन की मंजिल पर फैज कर दिया। फिर उसने सोचा इनको कुछ और अता करूं। उसने मंजिल ईकान से मंजिल विलायत पर फैज करके कुछ खास को अपना वली मुकर्रर कर दिया। फिर उसने सोचा इन पर भी कुछ करम हो जाना चाहिए। उसने फिर ऐसा करम किया कि पूरी दुनिया में से 1,24,000 को चुनकर मंजिल विलायत से मंजिल नबूवत पर फैज करके 1,24,000 को, परेशान नहीं होना, 1,24,000 को अपना नबी मुकर्रर कर दिया। फिर उसने सोचा कि 1,24,000 में भी तो करम होना चाहिए। उसने 1,24,000 पे क्या करम किया, उनमें से 313 को चुन के मनसब रिसालत पे फैज करके उनको अपना रसूल बना लिया। फिर उसने सोचा कि 313 में भी तो करम होना चाहिए। उन 313 में से 5 को चुनकर पैगंबर बना दिया। पहले 1,24,000 नबी बनाए, उनमें से 313 रसूल बनाए, 313 में से 5 को पैगंबर बनाए। फिर उसने सोचा अब 5 तो बड़े पैगंबर बना दिए, इनमें से किसी एक को अफजल भी तो बनाना चाहिए। फिर उन सब में से मुस्तफा को चुनकर सबसे अफजल बना दिया। जब मुस्तफा मंजिल रुजलियत पर फैज हो गए, उसने सोचा मुस्तफा को भी तो कुछ अता करना चाहिए। उसने कहा आए मेरे नबी, इन्ना आतैना कल कौसर, मैंने तुम्हें फातिमा अता कर दी है। मैंने तुम्हें फातिमा अता कर दी है। हो सकता है किसी के ज़हन में सवाल है कि अल्लाह ने फातिमा मोहम्मद को ही क्यों अता की है। अल्लाह आदिल है, आदिल का कायम है ये दुनिया। अल्लाह ने फातिमा मोहम्मद को ही क्यों अता किया है। मैं मिसाल देकर बात वाज़ेह करता हूँ। फर्ज कर ले मेरे इस हाथ में एक पानी का भरा हुआ जग है, इस हाथ में एक खाली गिलास है। अब मैं चाहता हूँ कि ये पानी का भरा हुआ जग इस गिलास में आ जाए। क्या ये जग आ जाएगा इस गिलास में? पानी का भरा हुआ जग इस गिलास में आ जाएगा। मैं कुदरत भी रखता हूँ, इस गिलास में पानी डाल भी सकता हूँ। आप कहेंगे नहीं भाई इस गिलास में ये सारे का सारा पानी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये गिलास इस काबिल ही नहीं है कि इसमें सारे का सारा जग का पानी आ जाए। भाई क्यों काबिल नहीं है? क्योंकि गिलास का इतनी ज़रूरत भी नहीं है कि उसमें ये सारे का सारा, मैं खुदा के बात समझा दूं, गिलास का इतनी ज़रूरत भी नहीं है कि जग का पूरा पानी इस गिलास में आ जाए। खुदा ने जब अजीम तोहफा फातिमा जैसा अजीम तोहफा कायनात में भेजना चाहा तो खुदा पूरी कायनात को देखता रहा, पूरी कायनात को देखता रहा। जब उसने पूरी कायनात को देख लिया तो फातिमा के भेजने के लिए उसे पूरी दुनिया में या खदीजा मिली या मोहम्मद मिला। आखिरी बात तमाम कर रहा हूँ, इसमें मसाइल भी हो जाएगा। अक्सर उलमाए नाम से मैंने ये वाक़या सुना है कि मशहद के एक मशहूर और मरूफ मुजतहिद गुजरे हैं आयतुल्लाह मिलानी। आयतुल्लाह मिलानी मशहद के एक मुजतहिद थे। जर्मनी से एक मियाँ बीवी इमाम रज़ा की ज़ियारत के लिए मशहद है। उन्होंने सोचा कि हम आयतुल्लाह मिलानी से मुलाकात करें, उनकी मुलाकात करवाई गई आयतुल्लाह मिलानी से। उन्होंने जाकर मुलाकात की और कहा कि हम आपसे कुछ अर्ज़ करना चाहते हैं।
आयतुल्लाह मिलानी ने फरमाया, जी आप जो बताना चाहते हैं मुझे बताइए। उन्होंने कहा कि हम जर्मनी से आए हैं, हम मुसलमान नहीं हैं, लेकिन जियारत करने के लिए आए हैं। तो हम एक वाकया आपको बताना चाहते हैं। वाकया ये है कि हमारी एक 16 से 17 साल की बेटी थी, जिसका एक्सीडेंट हुआ था और उसकी सारी पसलियां टूट गई थी। उसकी जब सारी पसलियां टूट गई तो हम उसे हर अस्पताल में लेकर गए, हर अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गए, लेकिन किसी डॉक्टर के पास उसका इलाज नहीं था। हर डॉक्टर ने हमें जवाब दे दिया, कोई डॉक्टर भी उसे अस्पताल में दाखिल करने के लिए तैयार नहीं था। अदालत जब ये बता रहे थे ना, आयतुल्लाह मिलानी साथ बोल रहे थे, इन्होंने कहा कोई डॉक्टर भी उसे अस्पताल में दाखिल करने के लिए तैयार नहीं था। हमारी बेटी हर वक्त मरने की दुआएं मांगती थी। आप लोग सोच सकते हैं जिसकी पसलियां टूट गई हो, ना तो वो बैठ सकती है, ना वो सांस ले सकती है। जब इन्होंने ये हाल अहवाल बताया, आयतुल्लाह मिलानी आगे पूछते गए, ये बताते गए कि जब हम थक हार के घर गए तो एक बीबी थी जो यही ईरान से ताल्लुक रखती थी, हम उसे बीबी कहते थे। वो बीबी हमारी बेटी के साथ अलग कमरे में बैठी थी। वो बेटी हमारे उसको हाल अहवाल दे रही थी कि बीबी दुआ किया करो मेरे लिए, क्या पता मैं कभी मर जाऊं, मेरे सांस लेना मेरे लिए मुश्किल हो गया है, मेरी सारी की सारी पसलियां टूट गई है। अदालत जब ये हाल बता रही थी तो बीबी ने कहा कि ऐ बेटी, हमारे पास एक तबीब है, अगर आप चाहें तो आपका इलाज हो सकता है। वो बेटी, उस बेटी ने कहा बीबी बस हमें उस तबीब का बता दो, जितने पैसे लेगा हम देने के लिए तैयार हैं, जितनी खर्चा लेगा हम देने के लिए तैयार हैं, बस मेरा इलाज हो जाए। उसने कहा देखो बेटी, मैं सैयद जाती हूँ, मेरी दादी जहरा, उसकी भी पसलियां सारी टूट गई थी, कोई और तबीब नहीं है, वो पैसे नहीं लेता, उसकी भी सारी पसलियां टूट गई थी। मैं चाहती हूँ आप तवज्जुह करो मेरी दादी जहरा से, वो जरूर आपकी मदद के लिए आएगी। अदादारो जब उसने ये कहा तो वो एक काफिरा थी, मुसलमान तो थी नहीं, जानती नहीं थी कि तवज्जुह कैसे करो। कहा बीबी बताइए तो सही, मैं तवज्जुह कैसे करूं। उसने कहा आप मुंह करो जन्नतुल बकी की तरफ और एक जुमला कह दो कि ऐ शिकस्ताए पहलू, ऐ फातिमा ज़हरा, मेरी मदद तो आइए, मेरी पसलियां टूट गई। ये तवज्जुह कर रही थी, इतने में वो बीबी अलग चली गई। उसने वुजू किया, वुजू करके मुसल्ला बिछाया, मुसल्ला बिछा के 2 रकात नमाज पढ़ी और दुआ